Assalamu alaikum. So basically we were talking about Carl Jung and we stated that there are three basic principles that the Carl Jung gave. Number one is known as opposition principle, number two is known as equivalence principle, and number three is known as entropy principle. We can define these in a single line. According to opposition principle, the conflict between opposing processes or tendencies is necessary to generate psychic energy. कि जब भी किसी भी दो अपोजिंग फोर्सेस के दरमियान या टेंडेंसीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी तो उससे साइकिक एनर्जी जनरेट होगी, जैसे कि मोहब्बत और नफरत है, ठीक है, हीट और कोल्ड है, ठीक है. इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या है? द कंटिन्यूइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद इन अ पर्सनालिटी if the energy expanded on certain condition or activities weakens or disappears, that energy transmitted elsewhere in the personality. कि अगर कहीं पर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाए या कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी कहीं और यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, यानी कि एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसी और जगह पे. थर्ड है एंट्रोपी प्रिंसिपल, अ टेंडेंसी टुवर्ड बैलेंस और इक्विलिब्रियम विद इन द पर्सनालिटी. The ideal is an equal distribution of psychic energy over all the structure of personality. कि अगर इक्वली बैलेंस हो और इक्वली आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो हर जगह पे तो बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है. Jung applied this law to psychic energy and proposed that there is a tendency toward balance or equilibrium in the personality. If the two desires or beliefs differ greatly in intensity or psychic value, energy will flow from the more strongly held to the weaker. एनर्जी हमेशा जो है वो strongly held जगह से weaker की तरफ जाती है. Ideally, the personality is an equal distribution of psychic energy over all aspects, but the ideal state is never achieved. आइडियल तो ये है कि आपकी साइकिक एनर्जी हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता. If perfect balance or equilibrium were attained, then the personality would have no psychic energy because, as we noted earlier, the opposition principle requires conflict for psychic energy to be produced. कि अगर परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम हो तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई साइकिक एनर्जी जो है वो नहीं होगी, ठीक है. साइकिक एनर्जी उसी सूरत में होगी when there is disequilibrium, when there is conflict between the two opposing forces. अब हम आ जाते हैं कि पर्सनालिटी क्या है अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग. In Jung's view, the total personality or psyche is composed of separate distinct system of structures that can influence one another. These are ego, the personal unconscious and the collective unconscious. ये तीन मेजर पार्ट हैं, ठीक है. ईगो, personal unconscious and the collective unconscious. Ego. So Jung, the conscious aspect of personality, the ego is the center of consciousness. Ego को उन्होंने center of consciousness का नाम दिया. The part of psychic energy that is concerned with perceiving, thinking, feeling and remembering. It is our awareness of ourselves and responsible for carrying out the normal activities of waking life. कि ये दुनिया के जितने काम हैं जो हम कर रहे हैं ये हम ईगो की वजह से करते हैं. Much of our conscious perception and of reaction to our environment is determined by the opposing mental attitude of extroversion or introversion. फिर उन्होंने extroversion और introversion का कॉन्सेप्ट दिया. अगर साइकिक एनर्जी बाहर की तरफ जनरेट हो, बाहर की तरफ चैनल्ड हो, ठीक है, तो उसको हम एक्सट्रोवर्जन कहते हैं. और अगर अंदर की तरफ हो, इंटरनली हो, टुवर्ड द सेल्फ हो, तो उसको हम इंट्रोवर्जन कहते हैं. जो एक्सट्रोवर्ट्स लोग होते हैं वो ओपन होते हैं, सोशल होते हैं, सोशली असर्टिव होते हैं, ठीक है, लोगों की तरफ उनका रुझान होता है और बैरूनी दुनिया की तरफ उनका रुझान होता है. जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, दे आर विथड्रॉन और ज़्यादातर शाय होते हैं और उनको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है, अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं. फिर एक्सट्रोवर्जन की अगर हम बात करें तो एन एटीट्यूड ऑफ द साइकिक एनर्जी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओरिएंटेशन टुवर्ड द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द अदर पीपल. और अगर हम इंट्रोवर्जन की बात करें तो एन एटीट्यूड ऑफ द साइकिक एनर्जी दैट इज comprised of characterized by the orientation towards one's own thoughts and feelings. कि अगर आपका अपनी जात की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान है तो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं. Jung proposed 8 psychological types based on the interaction of the two attitudes and the 4 functions. The extroverted thinking type lives strictly in accordance with society's rules. कि ये तकरीबन
8 बेसिक किस्में हैं। नंबर 1 है एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप लोग। ये सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। These people tend to repress feelings and emotions. ये अपने जज्बात को दबा देते हैं। To be objective in all aspect of life, ताकि अपनी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव रहें। And to be dogmatic in thoughts and opinions, और ताकि अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को माशरे के उसूलों के मुताबिक बनाए रखें। इनको आमतौर पर रिजिड समझा जाता है, कोल्ड समझा जाता है। ये ज़्यादातर अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं और दुनिया के बारे में ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं और लॉजिकल रूल्स सीखने की कोशिश करते रहते हैं जो कि वो अप्लाई करके दुनिया को डिस्क्राइब और अंडरस्टैंड जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली है एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप लोग। कौन से? एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप लोग जो कि सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। फिर है एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग टाइप लोग। पहले थिंकिंग टाइप लोग हमने डिस्कस किए, अब हम फीलिंग टाइप लोग डिस्कस करेंगे। They tend to repress the thinking mode and to be highly emotional. ये सोचते कम हैं और ज़्यादातर जज्बाती होते हैं। These people conform to their traditional values and moral code they have been taught, जो उनको इखलाकी उसूल और वैल्यूज सिखाई जाती हैं वो उनको ओबे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरों की ओपिनियन और एक्सपेक्टेशंस को, और ये इमोशनली रिस्पॉन्सिव होते हैं और दोस्त आसानी से बना लेते हैं, सोशल होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर ख़वातीन में पाई जाती हैं बनिस्बत के मेल्स में। फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग टाइप। दे फोकसेस ऑन प्लेजर एंड हैप्पीनेस एंड ऑन सीकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, के हर वक्त नए नए तजुर्बात करना, खुद को खुश करने की और प्लेजर की कोशिश करना। These people are strongly oriented toward the real world and are adaptable to different kind of people and changing situation. और ये ज़्यादातर जो है वो दो लोगों की तरफ जो है इनका रुझान ज़्यादा होता है। फिर एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूटिव टाइप, ये बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और पॉलिटिक्स में बड़ी कामयाब होते हैं बिकॉज ऑफ द कीन एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इनको वो उससे फ़ायदा उठाना जानते हैं। These people are attracted by new ideas and tend to be creative. ये नए नए आइडियाज पर काम करते हैं और क्रिएटिव होते हैं। They are able to inspire others and accomplish and achieve. They also tend to be changeable, moving from one idea or venture to another. अपने आप को चेंज करते रहते हैं और एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जाते रहते हैं। And to make decisions based on more hunches than on reflections. Their decisions, however, are likely to be correct. जो भी ये डिसीजन लेते हैं ज़्यादातर सही होती है। अभी हमने एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग, फीलिंग और सेंसिंग डिस्कस की। अब हम इंट्रोवर्टेड थिंकिंग, फीलिंग और सेंसिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप को डिस्कस करेंगे। इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप डज नॉट गेट अलोंग वेल विद द अदर्स। दूसरे लोगों से ये ताल्लुकात अच्छे नहीं बना पाते हैं और अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना इनको मुश्किल लगता है। These people focus on thoughts rather than on feelings and have a practical judgment poor होती है इनकी। Intensely concerned with privacy, और अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये ज़्यादा जो है वो तजरीदी तफक्कुर और थ्योरीज के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं बनिस्बत दूसरे लोगों को। ये ज़्यादातर स्टबन, अलूफ, एरोगेंट और इनकॉन्सिडरेट मशहूर होते हैं। जिद्दी, ठीक है, अपनी दुनिया में मगन रहने वाले, ठीक है, और मगरूर और दूसरों के बारे में एहसास न करने वाले समझे जाते हैं। इंट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप रिप्रेस रैशनल थॉट, ये अकली सोच को जो है वो रिप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं। These people are capable of deep emotions but avoid any outward expression of it, के जज्बात में तो ये बहुत डीप जाते हैं लेकिन लोगों के सामने उसका इजहार नहीं करते। बड़े मिस्टीरियस से होते हैं और इनएक्सेसिबल होते हैं, ज़्यादातर खामोश रहते हैं, मॉडेस्ट रहते हैं और बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। दूसरों की फीलिंग्स की और थॉट्स की इनको ज़रा नहीं परवाह होती और ज़्यादातर खुद को विड्रॉन, कोल्ड एंड सेल्फ अश्योर्ड रखने की कोशिश करते हैं। फिर इंट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप है, ये आमतौर पर पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते, काम होते हैं और दूसरे लोगों से डिटैच्ड होते हैं। These people look on most human activities with benevolence and amusement, के लोगों को
अम्यूजमेंट और बेनोवलेंस से देखते हैं, एस्थेटिकली सेंसिटिव होते हैं और अपने आप को आर्ट और म्यूजिक के थ्रू जो है वो पेश करते हैं। इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप focuses so intensely on intuition that people of this type have little contact with reality, कि ज़्यादातर इल्हाम के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए हकीकत से इनका ताल्लुक जो है वो बड़ा कमजोर होता है। These people are visionaries and are daydreamers, हर वक्त दिन ख्वाब देखते रहते हैं, अलूफ होते हैं, unconcerned with practical matters होते हैं और दूसरे लोगों को नहीं समझ पाते। They are considered odd and eccentric. They have difficulty coping with everyday life and planning for the future. जिंदगी को सही तौर पर प्लान नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं पर्सनल अनकॉन्शियस की तरफ। ठीक है, अभी हमने 6 टाइप्स 8 टाइप्स डिस्कस की हैं। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप, एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप, एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप, एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप, इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप, introverted feeling type, introverted sensing type, introverted intuiting type. फिर हम personal unconscious पे आ जाते हैं। In Jung's system is similar to Freud's conception of the pre-conscious. It is a reservoir or material that once conscious but has been forgotten or suppressed because it was trivial or disturbing. There is a considerable two-way traffic between the ego and the personal unconscious. For example, our attention can wander readily from this printed page to a memory of something we did yesterday. कि अभी मैं आपके सामने ये स्लाइड्स पढ़ रही हूँ और हो सकता है कि एकदम मुझे कल की कोई बात याद आ जाए। All kind of experiences are stored in the personal unconscious. जिंदगी के तमाम वाक़यात personal unconscious में stored होते हैं और it can be likened to a filling cabinet. Little mental effort is required to take something out of it. ठीक है, and put it back where it will remain until the next time we want it or remind it. ठीक है, कि ये कैबिनेट की तरह है कि कैबिनेट में हमने कोई चीज रख दी और जब जरूरत हुई हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? Complex to Jung, a core of the pattern of emotion, memories, perception, and wishes in the personal unconscious, organized around a common theme such as power or status. ज़हन के अंदर अपने जज्बात का, आपकी मेमोरीज का, आपके इदराक का और आपकी विशेस का इकट्ठा पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होना और किसी भी कॉमन थीम के ऊपर स्टोर्ड होना जैसे कि मोहब्बत है, पावर है, स्टेटस है, डोमिनेंस है, उसको हम कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ये शऊरी तौर पर भी हो सकते हैं और लाशऊरी तौर पर भी हो सकते हैं। Those that are not under conscious control can intrude and interfere with the consciousness, जो हमारे शऊर के इख्तियार में नहीं होते, वो हमारे शऊर को इंटरफेयर कर सकते हैं। The person with a complex is generally not aware of its influence. जिन लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं उनको इसका इदराक नहीं होता है। Although other people may easily observe its effects, some complexes may be harmful, but others can be useful. For example, a perfection or achievement complex may lead a person to work hard or developing a particular talent or skills. कि वो लोग जिनके अंदर परफेक्शनिज्म का होता है वो ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि अपने टैलेंट और स्किल्स को दुनिया के सामने ला सकें। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की तरफ आ जाते हैं, आपके जो तमाम आबाओ अजदाद का लाशऊर था, ठीक है, उसको अगर हम एक जगह पे स्टोर करें तो उसको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि इवेंट पहले से हो चुकी है, वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस की वजह से होती है। The deepest and the least accessible level of the psyche, the collective unconscious is the most unusual and controversial aspect of Jung's system. To critics, it is the most bizarre. Jung believed that the personal, each of us accumulate and fills our personal experiences in the personal unconscious. कि जो कुछ हमारी जिंदगी के वाक़यात हैं वो पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होते हैं। So does humankind collectively as a species. इसी तरह इंसानों के वाक़यात एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जिसको हम store the experiences of human and pre-human species in the collective unconscious. कि हमारे तमाम इंसानों के जो वाक़यात इकट्ठे एक जगह पर स्टोर्ड हो उसको हम collective unconscious कहते हैं। The heritage is passed to each new generation. Whatever experiences are universal, that is, are relatively unchanged by each generation, become part of our personality.
Ancient experiences contained in the collective unconscious are manifested by recurring themes or pattern, जिनको जंग ने आर्कीटाइप्स का नाम दिया। ठीक है, हमारी जिंदगी की तमाम माजी के तजर्बात जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं और वो कुछ खास थीम्स या पैटर्न की मदद से नजर आते हैं, उनको हम आर्कीटाइप्स कहते हैं। He also used the term primordial images. These are many such images of universal experiences, as many as there are common human experiences. By being repeated in the lives of succeeding generations, archetypes have become imprinted on our psychic energy and are composed in our dreams and fantasies. Among the archetypes proposed are the hero, the mother, the child, God, death, power, and the wise old man. A few of these are developed more fully than the others and influence the psychic more consistently. These major archetypes include the persona, the anima or animus, the shadow, and the self. सबसे पहले persona archetype क्या है? ये एक मास्क है, एक पब्लिक फेस है जो कि हम दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं और जो हम होते हैं उससे ये मुख्तलिफ होता है। Persona is necessary. Jung believed because we are forced to play many roles in order to succeed in school and on the job and to get along with a variety of people. फिर एनिमा आर्कीटाइप और एनिमस आर्कीटाइप है। एनिमा जो है वो फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द मेल साइकी है, मर्द के अंदर जो औरत की रूह होती है, और मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ मेल फीमेल साइकी जो है वो एनिमस कहलाती है। फिर उसके बाद है शैडो। The most powerful archetype Jung proposed has the sinister and mysterious name of the shadow, which contain the basic primitive animal instinct and therefore has the deepest roots of the archetypes. Behaviors that society considers evils and immoral reside in the shadow. कि जितनी भी हमारे वो बातें हैं जो कि सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं करती और जिनको वो evil समझती है, वो शैडो के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, ये हमारी जिंदगी का डार्क एस्पेक्ट है जिसको अच्छे से जो है वो सुधारना जरूरी है अगर हम हार्मनी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। We must refrain, overcome and defend against these primitive impulses. If we do not, society will likely to punish us. अगर हम अपने शैडो के अंदर मौजूद ताकत को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सोसाइटी हमें मुख्तलिफ तरीकों से सजा देगी। फिर सेल्फ आर्कीटाइप है, टू जंग द आर्कीटाइप दैट रिप्रेजेंट द यूनिटी, इंटीग्रेशन एंड हार्मनी ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी, तो उसको हम सेल्फ आर्कीटाइप कहते हैं। फिर इंडिविजुएशन है, अ कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फैसेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस जितनी भी फैसेट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं वो कंबाइंड हो जाएं तो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो सामने आता है जिसको इंडिविजुएशन का प्रोसेस कहते हैं। टू स्ट्राइव फॉर इंडिविजुएशन, मिडिल एज पर्सन must abandon the behaviors and values that guided the first half of life and confront their unconscious, bringing it into the conscious awareness and accepting what it tells them to do. They must listen to their dreams and follow their fantasies, exercising creative imagination through writing, painting, or some other form of expression. They must let themselves be guided, not by the rational thinking that drove them before, but by the spontaneous flow of the unconscious. Only in that way the true self can be revealed. ठीक है, कि अगर हम इंडिविजुएशन चाहते हैं तो हमें वो तमाम वैल्यूज और जो बिहेवियर्स हैं जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में थे उनको अबैंडन करना होगा। ठीक है, और उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस करनी होगी, उनको अपने ड्रीम्स और फैंटेसीज को सुनना होगा ताकि क्रिएटिव इमेजिनेशन जनरेट हो सके और उसको वो राइटिंग, पेंटिंग और सम अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से दुनिया के सामने ला सकें। उनको अच्छे से गाइड करना ज़रूरी है, रैशनल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो है वो बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। जो कार्ल जंग की और कंट्रीब्यूशन है उसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसमें पर्सन ने रिस्पॉन्ड करना होता है किसी भी स्टिमुलस वर्ड को किसी भी जवाब के साथ जो कि उसके ज़हन में आता है। फिर कार्ल जंग ने जो एक और कॉन्सेप्ट दिया
वो ड्रीम एनालिसिस का है। Jung argued with Freud that dreams are the royal road to the unconscious. Jung's approach to dream analysis differed from the Freud in that Jung was concerned with more than the causes of dreams, and he believed that dreams are more than the unconscious wishes. कार्ल जंग के मुताबिक ड्रीम सिर्फ अनकॉन्शियस विशेस नहीं होते, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि ख्वाब क्यों आते हैं. फर्स्ट, dreams are prospective, that is they help us prepare to experiences an event that we anticipate will occur. कि हम जो सोचते हैं कि ये हमारे साथ हो सकता है, उसको हम ख्वाब की मदद से देखते हैं. सेकंड, ड्रीम्स आर कंपनसेटरी, ये कंपनसेटरी होते हैं, ठीक है. और इवेंट्स they help us bring about a balance between the opposition in the psyche by compensating for the overdevelopment of any psychic energy. फिर इसके बाद जो उन्होंने important tool दिया वो Myers-Briggs type indicator है. An assessment instrument that is related to Jung's personality theory is a Myers-Briggs type indicator, ठीक है, जो कि कैथरीन कुक ब्रिग्स ने और एलिजाबेथ ब्रिग्स ने जो है वो 1920s में पेश किया. उसमें similarities and differences among personalities को चेक किया जाता है. And pursued an independent study of the topic in 1923. She read Jung's book Psychological Types and found that her view of personality was similar to Jung. Without research grant support, university affiliation of graduate student to assist her, she and her daughter Isabel developed a popular self-report inventory. ठीक है. फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो हम बात कर सकते हैं इवन वी पैवलोव की, ठीक है, जिन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स के ऊपर काम किया. एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और कंडीशन रिफ्लेक्सेस के बारे में उन्होंने 25 इयर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडी जो है वो पेश की, ठीक है. और उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कंडीशन रिफ्लेक्स है और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर है, ठीक है. और कंडीशन रिफ्लेक्स कैसे होता है? एक होता है अनकॉन्शियस स्टिमुलस, एक होता है कॉन्शियस स्टिमुलस. जब अनकॉन्शियस स्टिमुलस को कॉन्शियस स्टिमुलस के साथ कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट किया जाए और फिर जो है वो कोई फूड वगैरह दिया जाए तो अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस भी वही रिस्पॉन्स देने लगता है जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस पहले से दे रहा होता है, ठीक है. जैसे कि बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड है, ठीक है. फूड की वजह से मुंह में सैलिवेशन आ जाती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं. जब एक नेचुरल स्टिमुलस को, यानी कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेश किया जाए तो न्यूट्रल स्टिमुलस की कुव्वत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वही रद्द अमल देने लगता है जो कि नेचुरल स्टिमुलस पहले से दे रहा होता है. यानी कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग नेचुरल स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, जिससे कुत्ते के मुंह में पानी आ जाएगा. और आफ्टर कंडीशन अगर आप सिर्फ बेल भी बजाएंगे तो कुत्ते के मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा. ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट था अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बेल है जिसके ऊपर अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है, जैसे कि फूड है जिसके लिए किसी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जिसके ऊपर आ जाता है. फिर एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जैसे कि बेल है, बेल के ऊपर किसी किस्म का मुंह में पानी नहीं आता, लेकिन जब आप न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार पेश करेंगे तो न्यूट्रल स्टिमुलस की कुव्वत में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रद्द अमल देने लगेगा जो कि नेचुरल स्टिमुलस दे रहा है. इस वजह से इसको हम कंडीशन स्टिमुलस अब हम कहेंगे, ठीक है. और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाएगा. इसमें जो सबसे पहली टर्म है वो एक्विजिशन है. It is the part when the unconditioned stimulus and conditioned stimulus are presented together, जिससे कंडीशन रिस्पॉन्स होने की ज्यादा चांसेस होते हैं. एक्सटेंशन जब कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो ना हो, ठीक है, यानी कि आप कंडीशन स्टिमुलस तो बार बार पेश कर रहे हैं लेकिन किसी किस्म का खाना नहीं दे रहे, तो फिर कुत्ते के मुंह में पानी आना बंद हो जाएगा. तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी की जिस तरह से मुंह से लगी हुई कभी नहीं छूटती,
इसी तरीके से डॉग के साथ भी होगा कि अगर आप फूड ना भी दें तो कभी कभी कुत्ते के मुंह में पानी बेल बजने पे आ सकता है। इसको हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। ठीक है, ये है आज का लेक्चर, इसको अच्छे से पढ़ लें और कार्ल जंग की कंट्रीब्यूशन अच्छे से याद करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।